So good morning all. From today we are going to start uh, the concept of advanced Java programming, and it is as per the syllabus of MSc Computer Science, which is newly formed as per NEP 2020. Now, advanced Java programming. Here, Unit 1 is about multi-threading, as now it is assumed that you have gone through all the concepts of preliminary Java, that is why Java is called as pure object oriented programming, uh, why Java is called as platform independent programming, what are the basic concepts of Java, how to write a Java program, concept of method overloading, inheritance. Now, while designing this syllabus, it might be possible that it is assumed that you have gone through all these introductory concepts of Java programming. That's why in advanced Java, your unit 1 deals with multi-threading. And in this multi-threading unit, there are 5 topics. One is introduction, second one is how to create a thread, next one is thread life cycle, then thread priorities, and then thread synchronization. Now we will see one by one. Now what is multi-threading? Multi-threading is a programming technique that allows a program to execute multiple threads concurrently. What is thread? Thread is a lightweight process that shares the same memory space. Some part of program may be called as thread, and it enables different efficient utilization of modern multi-core processors. Now, what is multi-core processor? As all of you know, nowadays computer systems have the CPU with core system. The core system in the context of computer can refer to a couple of different things depending on the specific context in which it is used. For example, central processing unit core. Now, in terms of CPU core, a core refers to an individual processing unit within a multi-core CPU. Many modern CPUs, including those found in a personal computers and servers also, have multiple processing cores with a single physical chip. Each core is capable of executing instructions independently. Now see, it is very interesting, where each core is capable of executing instructions independently, which allows for better multitasking and parallel processing. For example, a dual core CPU has 2 processing cores, a quad core CPU has 4, and so on. More cores typically result in improved performance for tasks that can be divided into multiple threads. ऐसे टास्क जो मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड होते हैं, इनको रन करने के लिए ये जितने ज़्यादा कोर होंगे सीपीयू में उतना ज़्यादा फास्ट होगा. फॉर एग्जांपल वीडियो रेंडरिंग का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, और इन सम साइंटिफिक सिमुलेशंस आल्सो these core systems plays an important role. ये तो हो गया सीपीयू के बारे में, कोर सिस्टम का. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के बारे में भी इन सम कॉन्टेस्ट कोर सिस्टम कुड रेफर टू द सेंट्रल और कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेड ऑफ सीपीयू. This is the part of operating system responsible for managing hardware resources, scheduling tasks, providing essential services to other software applications. It is sometimes called the kernel. The kernel is responsible, आप सबको शायद मालूम है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल, which is a heart of operating system. So the kernel is responsible for functions like memory management, process scheduling, input-output operations of the operating system. It is the fundamental component of an operating system and interacts directly with the computer's hardware.
तो उधर भी सीपीयू में कोर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आजकल बहुत सारे कोर को सपोर्ट कर रही है. सो व्हेन यू एनकाउंटर द टर्म कोर सिस्टम in the context of computers, it is important to consider the specific context to determine whether it is referring to CPU cores or it is referring to core of the operating system. Now, multi-threading का यूज क्यों करना है? Reasons for using the multi-threading. एक तो कोर सिस्टम की वजह से यूटिलाइज सीपीयू रिसोर्सेस मोर इफेक्टिवली. Responsiveness is another advantage of using multi-threading. Keep user interfaces responsive. Now, if you gone through Java programming, then it supports 4 inheritances and 1 interface. So, this interface refers to the interface in Java. Parallel processing, divide tasks for faster execution. If it is possible to concurrently run multiple tasks at a time by using core system of a CPU or operating system, then definitely the execution of the process may be faster. And then concurrency is also another advantage of using multi-threading, because simultaneously it is possible to handle multiple tasks. अब जावा में थ्रेडिंग किस तरह से यूज होती है? तो देयर आर 2 ways. Java provides built-in support for multi-threading. Threads are instances of java.lang.thread class. As you know, in C or C++, we are using hash include, that is used to include header files which contains library functions which are used in C. In Java, import statement is used to import the predefined classes. कुछ क्लासेस होते हैं जो कि प्री डिफाइंड है, और वो प्री डिफाइंड क्लासेस कॉल करने के लिए नॉर्मली जावा में इसका यूज होता है. देन 2 ways to create threads. One is extending the thread class and second one is implementing the runnable interface. Normally अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी थ्रेडिंग के एग्जाम्पल देखोगे ना, तो वहाँ पे एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास बहुत कम जगह पे लिया हुआ है. नॉर्मली दिस मल्टी थ्रेडिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग रनेबल इंटरफेसेस इन मैक्सिमम टाइम. नाउ हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड इन जावा? दिस इज फर्स्ट मेथड. जैसे कि मैंने कहा कि 2 मेथड है. वन इज रनेबल इंटरफेस यूज करो, सेकंड वन इज एक्सटेंड करो थ्रेड क्लास को. तो पहली मेथड है दैट टू एक्सटेंड द थ्रेड क्लास. इसमें क्या करना पड़ेगा? क्रिएट अ क्लास दैट एक्सटेंड द थ्रेड. पहले आपको एक क्लास तैयार करना पड़ेगा. जैसे कि आपको मालूम है कि हम इनहेरिटेंस में एक्सटेंड्स लिखते थे, तो उसी तरह से क्रिएट अ क्लास दैट एक्सटेंड द थ्रेड, ओवरराइड द रन मेथड टू डिफाइन द थ्रेड बिहेवियर, and then instantiate and start the thread. Instantiate means start करो उस thread को. अब overriding means what? I think all of you know what is overriding in Java. Overriding is a fundamental concept in object-oriented programming that allows a subclass to provide a specific implementation of a method that is already defined in the superclass. Inheritance के जैसा example है. सब क्लास मीन्स C++ में हम उसे डिराइव्ड क्लास कहते थे. सुपर क्लास मीन्स C++ में उसे हम पेरेंट क्लास कहते थे. सो दिस पर्टिकुलर ओवरराइडिंग अलाउज अ सब क्लास टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द सुपर क्लास विथ सेम नेम. When a subclass overrides a method, it provides a new implementation of the method with the same name and parameters as the methods in the super. कभी कभी क्या होता है कि बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में सेम मेथड रहती है, सेम पैरामीटर रहते हैं, तो वैसे टाइम पे हमें कौन सा रन करना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे ओवरराइड नाम का एक कंसेप्ट जावा में है. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. दिस अलाउज द सब क्लास. अब ये ओवरराइडिंग क्या अलाउ करता है? तो दिस अलाउज द सब क्लास टू कस्टमाइज द एक्सटेंडेड बिहेवियर ऑफ द इनहेरिटेड मेथड.
इनहेरिटेड मेथड मीन्स दोनों क्लास में अगर सेम मेथड विथ सेम पैरामीटर्स है तो कौन सी रन करना चाहिए, ये जो ओवरराइडिंग कंसेप्ट है वो डिसाइड करेगा कि कौन सी रन होगी. नाउ second method is runnable interface. It is somewhat easy. Just you have to create a class that implements the runnable, implement the run method, create a thread object passing an instance of your runnable class, start the thread. ये आपको कब पता चलेगा, जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे मल्टी थ्रेडिंग का. Now what are the benefits and challenges? बेनिफिट्स क्या है? परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इफिशियंट होगा और पैरेलल प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा. और चैलेंजेस क्या है? थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन कैन बी ए कॉम्प्लेक्स. सिंक्रोनाइज जो करना है हमें थ्रेड्स का, वो इट माइट बी कॉम्प्लेक्स. नॉर्मल छोटे छोटे प्रोग्राम में ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है. पोटेंशियल फॉर डेडलॉक्स एंड रेस कंडीशंस. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू डेडलॉक एंड रेस कंडीशंस. डेडलॉक रेस कंडीशन मोर ओवर सेम है. ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कंसेप्ट है. Suppose there are two processes and two resources. Two processes and two resources. प्रिंटर और स्कैनर समझो रिसोर्सेस है और दो प्रोसेसेस है P1 एंड P2. दोनों प्रोसेसेस को दोनों रिसोर्सेस एट ए टाइम चाहिए फॉर कंप्लीट एग्जीक्यूशन. और कंडीशन कैसे आ गई है कि P1 होल्ड्स रिसोर्स 1 and it is waiting for resource 2. means process 1 के पास already resource 1 है and it is waiting for resource 2 to be allocated. और process 2 का प्रॉब्लम क्या है? it holds resource 2 and it is waiting for resource 1 which is currently allocated to process 1. this is called as deadlock or race condition. दोनों रन नहीं हो रहे हैं. एक ने रिसोर्स 1 को लेके बैठी है, दूसरी रिसोर्स 2 को लेके बैठी है और ये दोनों को कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए दोनों भी रिसोर्सेस चाहिए. क्या होगा? तो डिपेंडिंग ऑन आइदर प्रायोरिटी और आपकी जो भी शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम है वो टाइप के हिसाब से एक को प्रायोरिटी दी जाएगी. अगर P2 को प्रायोरिटी दी जाती है तो रिसोर्स 1 विच इज एलोकेटेड टू P1 वहाँ से डिटैच किया जाएगा, P2 को दिया जाएगा. P2 के पास अब दोनों रिसोर्सेस आ गए. इट विल बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इट शुड रिलीज द टू रिसोर्सेस सो दैट प्रोसेस 1 विल बी एग्जीक्यूटेड. डिबगिंग मल्टी थ्रेडेड कोड कैन बी चैलेंजिंग. डिबगिंग हम किसे कहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर हमको प्रोग्राम को रन करना है तो दैट पार्ट में बी चैलेंजिंग इन मल्टी थ्रेडिंग. नाउ दिस इज द थ्रेड लाइफ साइकिल. बहुत जगह पे हमने शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इस तरह का कुछ साइकिल देखा होगा. वन इज न्यू, देन रनेबल, रनिंग, ब्लॉक्ड एंड टर्मिनेटेड. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड. न्यू मीन्स अभी हमने एक नया थ्रेड क्रिएट किया है. रनेबल मीन्स द थ्रेड इज रेडी टू रन एंड इट इज वेटिंग फॉर CPU टाइम. CPU का टाइम चाहिए उसको रन होने के लिए. रनिंग मीन्स करंटली एग्जीक्यूटिंग. इसको CPU का टाइम मिल गया है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है. ब्लॉक यहाँ पे ये आता है कि इट इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स और लॉक. लॉक क्या कंसेप्ट है हम आगे देखेंगे. लेकिन रनिंग स्टेट में अगर है थ्रेड और उसे कुछ रिसोर्स चाहिए और वो अगर नहीं मिल रहा है तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज ब्लॉक्ड स्टेट. स्टेट कह सकते हो आप इसको. न्यू, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक्ड, टर्मिनेटेड, ऑल दीज आर नथिंग बट द स्टेट्स ऑफ द लाइफ साइकिल. एंड टर्मिनेटेड मीन्स वंस द थ्रेड कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन तब हम कहते हैं कि वो थ्रेड टर्मिनेट हो गया. टर्मिनेट हो गया मीन्स व्हाट? कि वो थ्रेड का काम जो था वो कंप्लीट हो गया. अब एक एक देखेंगे हम. पहला है न्यू. थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड येट. शुरू नहीं हुआ है, अभी क्रिएट करके रखा है. इन दिस स्टेट स्टार्ट मेथड हैज नॉट बीन कॉल्ड.
क्योंकि स्टार्ट मेथड जब हम कॉल करते हैं थ्रेड में तो वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है. ट्रांजिशन टू रनेबल स्टेट आफ्टर कॉलिंग स्टार्ट मीन्स न्यू से रनेबल में जाने के लिए हमें उस थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ेगा. सेकंड वन इज रनेबल स्टेट. थ्रेड इज रेडी टू रन बट वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम. स्टार्ट तो करके रखा है बट इट इज वेटिंग फॉर सीपीयू टाइम. इट कैन बी शेड्यूल्ड टू रन. ट्रांजिशन टू रनिंग स्टेट व्हेन सीपीयू टाइम इज एलोकेटेड मीन्स पहले न्यू थ्रेड था वो रनेबल में आ गया. जब सीपीयू टाइम मिलेगा तो वो रनेबल से रनिंग स्टेट में जाएगा. रनिंग थ्रेड इज करंटली एग्जीक्यूटिंग इट्स रन मेथड. थ्रेड की जो भी एग्जीक्यूशन की मेथड होगी दैट मेथड इज और द थ्रेड इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. कैन ट्रांजिशन टू रनेबल और ब्लॉक्ड स्टेट मीन्स ब्लॉक्ड आ गया ना एक बार कि वो फिर रनेबल में जाएगा. रिसोर्सेस का वेट कर रहा है वो मीन्स इट इज रनेबल है, रनिंग नहीं है. अब ब्लॉक्ड क्या है? थ्रेड इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स और लॉक. इट कैनॉट प्रोसीड अंटिल द रिसोर्स बिकम्स अवेलेबल. ट्रांजिशन बैक टू रनेबल व्हेन द रिसोर्स इज एक्वायर्ड. क्योंकि जब ब्लॉक स्टेट में जाता है ना कौन सा भी थ्रेड, एट दैट टाइम जब उसको कोई रिसोर्स चाहिए तो ब्लॉक्ड स्टेट में जाएगा. ब्लॉक्ड स्टेट में उसको रिसोर्स मिल गया तो डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाएगा, वो रनेबल में जाएगा. उसके बाद फिर सीपीयू का टाइम मांगेगा. And once the CPU time is given to that particular thread, it is now in running state. Next thing is thread priorities. अब priority क्या है? There are I think 10 priorities. Total number of priorities are 10. Higher priority threads are more likely to be scheduled. Means उसको CPU time थोड़ा जल्दी मिलेगा. Use set priority method. अब देखो जावा और सी प्लस प्लस में हम जिसे फंक्शंस कहते थे उन्हीं को जावा में मेथड्स कहा जाता है. आप सबको मालूम भी है ये शायद. सो यूज सेट प्रायोरिटी मेथड टू सेट द थ्रेड्स प्रायोरिटी. ये आगे थोड़े आगे का कंसेप्ट है. नाउ जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था प्रेफर रनेबल ओवर एक्सटेंडिंग द थ्रेड. रनेबल ज़्यादा यूज करो, एक्सटेंड के पीछे ज़्यादा मत लो. यूज थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन टू मैनेज शेयर्ड रिसोर्सेस. कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिसोर्सेस शेयर्ड पोजीशन में होते हैं, वो यहाँ वहाँ 2-3 जगह पे 2-3 कंप्यूटर पे शेयर किए जाते हैं. वैसे रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन अच्छा चाहिए. देन ग्रेसफुली हैंडल द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस आप सबको मालूम है ट्राई कैच ब्लॉक रहता है. अगर कोई डिविजिबल बाय जीरो इज एन एक्सेप्शन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो होता क्या है कि हम प्रोग्राम रन करते हैं और वो अननेसेसरी या किसी जिसे हम नहीं चाहते हैं उस तरह से वो टर्मिनेट होता है. तो वो टर्मिनेट होने से पहले कुछ हम मैसेज देना चाहते हैं. समझो इट इज़ अ डिविजिबल बाय जीरो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट द एक्सप्रेशन. तब हमने ये ट्राई कैच थ्रो का शायद यूज़ किया था. एंड अवॉइड यूजिंग स्टॉप. थ्रेड का एग्जीक्यूशन एक बार हो गया ना वो ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा, तो स्टॉप टर्मिनेशन के लिए थ्रेड के यूज मत करो. अब प्रायोरिटीज क्या करती है? थ्रेड प्रायोरिटीज हेल्प द जावा वर्चुअल मशीन डिटरमाइन विच थ्रेड टू एग्जीक्यूट व्हेन मल्टीपल थ्रेड्स आर रेडी. बहुत सारे थ्रेड्स रेडी स्टेट में है तो उसमें से कौन सा एग्जीक्यूट करना है ये थ्रेड की प्रायोरिटी डिसाइड करेगी. Priority levels range from 1 to 10. Higher priority threads are scheduled more frequently but not guaranteed to run first. ये भी गारंटी नहीं है. ये एक क्या अनुमान है कि 1 to 3 these are called as low priority threads. 4 to 6 these are called as normal priority threads. And 7 to 10 means पहले 3 low priority, next 3 नॉर्मल प्रायोरिटी जिसे हम डिफॉल्ट कहते हैं, एंड 7 to 10 दीज आर कॉल्ड एज हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स. सपोज थ्रेड 1 हैज अ प्रायोरिटी 5 दैट इज डिफॉल्ट. थ्रेड 2 हैज अ प्रायोरिटी 8 हाईएस्ट. थ्रेड T3 हैज अ प्रायोरिटी 3
लोएस्ट मीन्स T3 लोएस्ट प्रायोरिटी का है, T1 डिफॉल्ट का है, T2 हाईएस्ट प्रायोरिटी है. हायर प्रायोरिटी थ्रेड्स में गेट मोर CPU टाइम बट नॉट गारंटीड. अगर T1 पहले आता है तो डिफॉल्ट को पहले देगा, T2 को नहीं देगा. Then what is thread synchronization? Synchronization is either related with methods or blocks which are present in programming. Thread synchronization is crucial for managing shared resources and avoiding race conditions. जैसे मैंने अभी डेडलॉक का एग्जांपल दिया था, वैसे रेस कंडीशन अवॉइड करने के लिए हमें थ्रेड का सिंक्रोनाइजेशन करना जरूरी है. टू मेन सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स इन जावा. वन इज सिंक्रोनाइज्ड मेथड्स और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स. Now what are synchronized methods? While writing any synchronized method, you have to use keyword synchronized before the method's declaration. Means जब हम मेथड कोई डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे उस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड मेथड बोल के आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओनली वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूट द सिंक्रोनाइज्ड मेथड एट ए टाइम. कौन सा भी एक ही थ्रेड, मेरे पास अगर 3 थ्रेड्स है तो कौन सा भी एक ही थ्रेड एट ए टाइम इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड को यूज कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है. एंड इट इंश्योर्स द म्यूचुअल एक्सक्लूजन. नाउ व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफन एब्रिवेटेड एज अ म्यूटेक्स, जिसे हम म्यूटेक्स बोलते हैं. It is a critical concept in multi-threading. Regarding multi-threading, it is a critical concept and concurrency in Java. It refers to the practice of ensuring that only one thread can access a particular resource or section of a code at the given time. This is essential for preventing data races. Means race condition arise होने से पहले ही उसको ब्लॉक कर दिया जाए, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन ज़रूरी है. अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए ये प्रोसीजर थी. कॉन्करेंसी इशू भी अवॉइड करता है. इंश्योरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेस इन द मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट. अगर कोई शेयर्ड रिसोर्स आपके पास है तो उसका इफिशिएंट यूज करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन जरूरी है. सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक्स यूज द सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड विद ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर. उससे हम ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे. अलाउज फाइनर ग्रेन्ड कंट्रोल ओवर सिंक्रोनाइजेशन. मल्टीपल ब्लॉक्स कैन रन कॉन्करेंटली इफ यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. एक ही ऑब्जेक्ट से अगर आप बहुत सारे ब्लॉक्स अगर एग्जीक्यूट करना चाहिए तो शायद वो पॉसिबल न हो, लेकिन इट इज़ पॉसिबल टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ब्लॉक्स बाय यूजिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा. अब थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है? प्रिवेंट्स डाटा करप्शन एंड रेस कंडीशंस. रेस कंडीशन इसी के बारे में हमने पहले भी बताया. देन इंश्योर्स कंसिस्टेंसी इन शेयर्ड रिसोर्सेस and facilitates orderly access to critical sections. As thread priorities are set, it facilitates orderly access to critical sections. Critical section अगर कोई प्रोग्राम में है तो उसको एक्सेस करने के लिए थ्रेड्स का ऑर्डर क्या चाहिए वो फैसिलिटेट करेगा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा क्लास है मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्पल नाम का क्लास है. एंड दिस इज द मेन क्लास. ये मेरा मेन क्लास है. क्यों? अब इसे हम मेन क्लास क्यों कहेंगे? बिकॉज मेन इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लास. मेन मेथड जो रहती है इट इज अ पार्ट ऑफ दिस क्लास. तो यहाँ पे क्या है? 1 मिनट, आई विल एक्सप्लेन बाय यूजिंग सम. दिस इज माई मेन क्लास मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्पल. उसके बाद क्या है? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन. ये जावा का सिंटैक्स है. आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग. ये थिंग मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा. ये क्या है? तो दिस इज द मेन मेथड वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस. यहां से आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा.
2 threads are created here. ये थ्रेड है, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2. न्यू नंबर प्रिंटर. नंबर प्रिंटर क्या है? आप नंबर प्रिंटर इज अ मेथड, ये यहां पे है. थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 हमने किस तरह से डिफाइन किया है? इट विल डिस्प्ले थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2, इसके लिए खाली. उसके बाद मैंने क्या किया है? थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट. तो पहले कौन सा थ्रेड स्टार्ट हुआ? थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ. देन क्लास नंबर प्रिंटर एक्सटेंड्स थ्रेड. अब ये एक क्लास है विच एक्सटेंड्स द थ्रेड. अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक्सटेंडिंग का लिया है. सो विच एक्सटेंड द थ्रेड. इसमें क्या है? एक स्ट्रिंग है थ्रेड नेम नाम की. पब्लिक नंबर प्रिंटर स्ट्रिंग का नाम है. दिस डॉट थ्रेड नेम इज इक्वल टू नेम. तो यहाँ पे जो भी पास किया जाएगा, यहाँ पे देखो थ्रेड 1 थ्रेड 2 पास किया है हमने इस मेथड को. तो ये स्ट्रिंग्स है. तो ये स्ट्रिंग कहाँ पे जाएगी? दिस डॉट थ्रेड नेम, करंट थ्रेड का नाम वो देगा. ठीक है. तो थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2. स्टार्टिंग अ थ्रेड मीन्स दैट इट विल एग्जीक्यूट द रन मेथड डिफाइंड इन द नंबर प्रिंटर क्लास concurrently with the main thread. क्लास नंबर प्रिंटर कैसे डिफाइन किया है? इट एक्सटेंड्स द थ्रेड. दिस इज अ कस्टम क्लास दैट एक्सटेंड द थ्रेड क्लास, अलाउइंग यू टू डिफाइन योर ओन थ्रेड बिहेवियर. अब नंबर प्रिंटर क्लास में क्या क्या लिखा है हमने? नंबर प्रिंटर क्लास में लिखा है थ्रेड नेम वेरिएबल होल्ड्स द नेम फॉर द थ्रेड विच इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट. जैसे हमने पहले कहा था कि थ्रेड डिफाइन करते वक्त हमने पास की थी आर्ग्यूमेंट व्हेन क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ अ नंबर प्रिंटर क्लास. रन मेथड इज ओवररीडन. ये ओवरराइड @ ओवरराइड लिखा है ना, तो ये जो मेथड है दिस मेथड इज ओवररीडन. मेथड में क्या है? सिंपल वन फॉर लूप है और अंदर लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड नेम. जो भी नेम आएगा थ्रेड का वो प्लस आई मीन शॉर्ट वट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आई. और यहाँ पे हमने लिखा है ट्राई कैच ब्लॉक. और इसमें हमने क्या किया है कि कॉन्करेंटली जो थ्रेड रन हो रहे हैं ना, उसमें कुछ छोटा सा डिले रखने के लिए. नाउ सी, रन मेथड इज ओवररिडन. दिस मेथड डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द थ्रेड व्हेन इट इज स्टार्टेड. ठीक है. अ फॉर लूप इज यूज टू इटरेट फ्रॉम 1 to 10 and within each iteration the thread's name and the current value of I are printed to the console. There is a call for thread.sleep. अगर आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे thread.sleep का कॉल है. ये किस लिए है? Which makes the thread sleep for 100 milliseconds. अब क्यों किया है इसको? This particular sleep simulates concurrent execution and allows the other thread to execute as well. The purpose of this sleep is to introduce a delay. Delay है ना ये 100 मिलीसेकंड का between the output of two threads, demonstrating that they can run concurrently. The try catch block is used to handle any exception that may occur while the thread is sleeping. In summary, this program मीन्स ये प्रोग्राम किस लिए लिखा है? क्रिएट्स 2 threads, each of which is an instance of the number printer class. These threads run concurrently and their primary task is to print numbers from 1 to 10. थ्रेड 1 का भी वही टास्क है, थ्रेड 2 का भी वही टास्क है. इंट्रोड्यूसिंग अ स्लाइट डिले बिटवीन ईच प्रिंट स्टेटमेंट. हर प्रिंट स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिले दिया गया है. दिस इलस्ट्रेट्स द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग where multiple threads can execute their tasks concurrently. So it is all about multi-threading in Java.
सो थैंक यू वेरी मच। हो सके तो मैंने इसका नोटपैड का फाइल भी तैयार किया है। नोटपैड का फाइल हम देखते हैं, वो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या? 1 मिनट। तो मैंने इक्लिप्स तो इंस्टॉल नहीं किया है अभी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि छोटा जावा प्रोग्राम है तो इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हैं। सो जस्ट टाइप cmd, तो ये आ गया आपका cmd। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मैंने यहाँ पे C:* पे जावा प्रोग्राम्स नाम की एक डायरेक्टरी बनाया है, इन विच वट एवर मे बी द टेस्ट प्रोग्राम्स ऑफ जावा, दीज प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड। और ये जो हमारा मल्टी थ्रेडिंग का एग्जाम्पल है और उसका नाम, एक मिनट हम यहाँ पे चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, इफ आई टाइप द प्रोग्राम ऑफ जावा इन नोटपैड, then what you have to do, you have to go to command prompt, then set the path by using this set path is equal to C:/program files /java/jdk/bin. So this bin directory contains all the files which are responsible for executing the Java program. अब हम यहाँ पे देखते हैं ये प्रोग्राम का नाम क्या दिया था मैंने, ये मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्पल नाम है प्रोग्राम का। सो जावा सी मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा। अगर ये एंटर करने के बाद कुछ भी नहीं आता है, इट मीन्स दैट माई प्रोग्राम इज करेक्ट। Now if I want to execute this program, then Java multi-threading example इतना ही देना है, एंटर करो। अब ये देखो, ये जब प्रिंट हो रहा है तब 100 मिलीसेकंड का हर एक थ्रेड के अंदर छोटा सा डिले आ रहा है। अगर हम डिले बढ़ाते हैं, अभी नोटपैड आपको दिखेगा नहीं दिखेगा दैट आई डोंट नो, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। जो हमने 100 दिया था ना, तो आप देखिए 1 मिनट, यहाँ पे हमने जो 100 डिले दिया था, तो कुछ इस तरह से मेरा जो स्पीड देख रहे हो ना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की, वो स्पीड पे ध्यान दो। प्रोग्राम तो वही है, देखो टाइप मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, जो हमने वो यहाँ पे लिया था, क्या बोलते हैं हम प्रेजेंटेशन में, सेम प्रोग्राम इज रिटर्न हियर। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोग्राम को थोड़ा एडिट करके देखते हैं, एडिट होगा क्या यहाँ पे, एडिट मल्टी थ्रेडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा। तो एडिट तो नहीं हो रहा है, मैं सीधा नोटपैड में ही जाता हूँ। नोटपैड में ये प्रोग्राम ओपन ही है। मैं इसको अभी क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ 100 आई विल राइट हियर 400। नाउ सेव द प्रोग्राम, अगेन go to here command prompt, again write down java c multi-threading example dot java। एग्जीक्यूट हो गया। अब जावा मल्टी थ्रेडिंग, अब देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि हमने पहले जो 100 था उसकी जगह 400 कर दिया। सो हर थ्रेड को देखिए, थ्रेड 1 इटरेशन 1, थ्रेड 2 इटरेशन 1, थ्रेड 2 इटरेशन 2, थ्रेड 1 इटरेशन 2, थ्रेड आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन हमने वो डिले दिया है, इसलिए क्या हो रहा है कि हर एक थ्रेड को हर इटरेशन में चांस मिल रहा है एग्जीक्यूशन का। नॉर्मली 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ जगह पे 1 2 1 2 है। सो इट इज डिपेंडिंग ऑन CPU टाइम विच इज प्रोवाइडेड टू दिस थ्रेड्स विच आर इनक्लोज्ड इन योर प्रोग्राम। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जावा प्रोग्रामिंग।
So thank you very much for watching this video. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. Thank you one and all.